Sir, please excuse me. Sir, a long time I was willing to ask you that, sir, as you have worked with many music directors and many composers, so I have heard about I don't know whether it is a myth or it is a truth. So someone from Bengal taught R.D. Burmanji, Rahul De Burmanji, to play means harmonica, how to play harmonica. So, means, can you tell me, means, what is Look, the degree of truth in this look, statement? actually, people, earlier there were no source of, social sites and YouTube and all these um, 4G and Android phones, all these things. So, media was not so strong. So, And as I know, respected Sachinda and Pajamda, we should not, we should not compare anybody with these skies of music. They were not sir, stars. आपने सुना होगा कि एक तारा टूट जाए तो आसमान खाली नहीं होता, तो of course, सचिन दा पंचम दा ये लोग कोई स्टार नहीं थे, तारे नहीं थे कि ये टूट जाए तो आसमान खाली ना हो। sir, ये सब आसमान के आकाश थे। इनमें लाखों very right, sir. लोगों को अपनी गोद में जगह देने की, लाखों सितारों को अपनी गोद में जगह देने की हैसियत थी इन लोगों में। People did not know that Sachin da, he could play two harmonium at a time. So, Someone else are playing blowers. Sachin da is playing two different classical, Indian classical ragas of different speed. means in once only it was happening. At the same time, he Same could time. play Sir, different ragas and different rhythm or different speed. And same time, he used to talk with others. That was Sachin da. Late Mukul Prasanna Sengupta, he was playing something in 60s. Mukul Sengupta passed away in 1969. And as Mukul Sengupta told me, Panchamda came to him and he was just 8 or 9 years old. And he asked how these different sounds are being produced in harmonica bari. sir, Mukul Dada, he just explained him how we use tongue for different strokes. sir, Nadadina, dhoom na dhoom, tadina or dadina nadina or dadina nadina. These are the strokes, rhythm of India. sir. Rata dum dum, the Western strokes. He only explained 5 minutes. Only 5 minutes, sir. Yes. And within 7 days, Pachamda, he started playing rhythm. That was Panchamda magic. It is just impossible. I know more than 1,000 players, they are playing harmonica, and you may get these harmonicas on YouTube. They can play melody, but they cannot play harmony. They are not harmonizing. They the are not song. harmonizing. They cannot play chords. आजकल एक मिथक है कि अगर हम हारमोनी बजाते तो ये फ्रॉड है। आप ये बताइए कि ये फ्रॉड है? ये फ्रॉड है। ये आर.डी. बर्मन का खुद का कंपोजिशन फ्रॉड है। और No, it is not a दोस्त fraud, sir. दोस्त अगर आज ऐसा कोई बजाता है तो हारमोनिका प्लेयर्स बोलते हैं कि फ्रॉड है। हारमोनिका प्लेयर्स कैसे बजाते हैं? ये मेलोडी है, दिस इज नॉट हारमोनी। और ये जो ट्यून है हेमंदा का,
है अपना दिल तो आवारा, ये 1956 में इस ट्यून को टोटल हार्मोनी का पर पंचम दा ने कंपोज कर लिया था। हेमंत दा आया कुछ बात करने के लिए, वो जब जाने लगे तो पंचम दा ये बजा रहे थे, और जब लौट के आए तो उन्होंने बंगला में पंचम दा से पूछा, पंचम तुम्हारी ट्यून टामी नहीं ने वो की, तुम्हारी ये ट्यून मैं ले लूँ क्या? पंचम दा बोले ले लो। बोले मैं एक फिल्म बना रहा हूँ 16 साल, उसमें देवानंद हीरो है, उसमें ट्यून यूज़ करूँगा। पंचम दा बोले ले लो। और 1958 में 16 साल आए जिसमें देवानंद जी हीरो थे, नायक थे, और ये गाना उसमें आया। अगर आज ऐसा बजाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि फ्रॉड है। HMV के सीनियर आर्टिस्ट हम लोग रिस्पेक्टेड है, हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, पुणे के मदन कुमार शर्मा जी, लोग उनको नहीं जानते। दिल्ली के रवि सहगल जी, जिनके सिर्फ 2 वीडियोस मिलेंगे आपको यूट्यूब में, रवि कुमार सहगल के नाम से, इंडिया में उनको कोई जानता नहीं है। अशोक भंडारी जी हैं, वो भी कॉर्ड्स बजाते हैं, उनको थोड़े बहुत लोग जानते हैं। उससे ज़्यादा फेमस तो लोग हैं, उनके 1000 10,000 व्यूज हैं यूट्यूब में, But they don't play harmony. बट दे कांट प्ले, दे डोंट प्ले, नहीं दे कांट प्ले। They can't play. And I would like to tell you, it is not important which gun you have to win a war, but it is important. It is very very important of what strategy and what tactics you are using to win a war. Exactly, sir. ऐसा नहीं कि आप किसी बहुत चीप माउथ ऑर्गन में आप अच्छा नहीं बजा सकते। अब आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखिए आप, ये वर्ल्ड का सबसे छोटा माउथ ऑर्गन है, गिनीज बुक में नाम है उसका। बहुत छोटा ये रिकॉर्ड बनाने के लिए मेरे फिंगर देखिए अब कितना छोटा है, ये दिस इज लेस देन 1 इंच, बट इट इज you must know how to play, that is more important. ये चीज़ लोगों को मालूम नहीं है। और पंचम दा के अंदर खुद का टैलेंट था। एक और बात आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा किशोर दादा के बारे में। सर, ये बनारसी लाल खटपट्टू जो खंडवा वाले थे, जिनके बारे में अभी तक लोग ये कहते हैं कि क्लासिकल तो सीखा नहीं था, क्लासिकल तो सीखा नहीं था। अब मैं जब सुनता हूँ मुझे बड़ी हंसी आती है। किशोर दा ने बेसिक क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी, अशोक दादा मुनि की ट्रेनिंग थी, बहुत अच्छे क्लासिकल जानते थे। लेकिन किशोर दा रहते किसके साथ थे? रहते थे सचिन दा, पंचम दा, लक्ष्मण जी, प्यारेलाल जी, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, और आर.डी. बर्मन साहब के जो असिस्टेंट्स थे, बासु, मनोहर जी, करीम साहब, उत्तम सिंह साहब, सोनिक, ओमी, भानुदा बहुत अच्छे गिटारिस्ट थे और बहुत अच्छा हारमोनियम प्ले करते थे। ये सब क्लासिकल में मास्टरपीस थे। इनके साथ जो आदमी 24-24 घंटे रहता, वो क्लासिकल नहीं सीख जाएगा फिर। क्या बचकानी बातें करते लोग। कितना चेंज आया था लास्ट डेज में, लोग भूल गए। वो किशोर था जो खटपट्टू वाले गीत गाते थे। जब उन्होंने वो गीत गाया, मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, इसमें क्लासिकल का टच नहीं है सर, है टच। या पगला हवार पागल दिल, इसमें क्लासिकल नहीं है। कौन बोलता नहीं इसमें क्लासिकल? मालूम तो हो कि हाँ रविंद्र संगीत है क्या, लोगों को पता तो हो। तो क्या किशोर कुमार जी ने रविंद्र संगीत नहीं गाया क्या? जो दी तोर डाक सुनने क्यों ना से तबे अकला चलो रे, सुर में कहाँ गलती थी? आजकल तो ये होगा कि बहुत सारा रैप निकला है जिसमें लोग गाने लगे। Now all became किशोर कुमार एंड रफ़ी साहब सब हो गए। ऐसा नहीं, रफ़ी साहब बन नहीं सकते, पैदा होते हैं। किशोर दास जैसे लोग पैदा होते हैं, आप बन नहीं सकते। और भी टैलेंटेड लोग हैं, सभी टैलेंटेड हैं, लेकिन किसी भी आदमी का दूसरा पीस नहीं मिलता। इट इज़ इम्पॉसिबल। और अब क्या हो गया कि क्योंकि ये जो
मैजिकल लोग थे, मिरेकल्स थे, ये अब हैं नहीं, इस दुनिया में जा चुके हैं। अनलकीली हम लोग जैसे कुछ लोग जिंदा हैं, हम लोग भी चले जाएंगे, फिर एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। मुझे कौन जानता है? क्या आप जानते हैं मेरे को? क्या मेरा कोई नाम जानता कोई इंडिया में? मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो इंडस्ट्री में रहे, काम किए, छोड़ दिया उन्होंने, और कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर वाला खाने को दे रहा है। जिंदा है हम लोग, ये चीप पॉपुलरिटी नहीं चाहिए। बर्मन साहब को पेंशन को किसी ने बिठा के घंटों बैठ के कभी हारमोनियम सिखाया नहीं, फालतू की बातें। ही हिमसेल्फ डेवलप्ड दैट इंस्ट्रूमेंट। और अगर वो विश्वास ना हो तो आशा भोसले जी अभी जीवित है, आप उनसे जाके पूछ लीजिए, आर डी बर्मन साहब की पूरी फैमिली है, जाके पूछिए, थप्पड़ पड़ेगा। तो अगर थोड़ा बहुत आपको नाम कमाना तो आप अपने टैलेंट पे नाम कमाइए, ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे नाम कमा रहे हैं। दिस इज बैड। मेरे जैसे हजारों पड़े हैं भारत में, हजारों, किसी को कोई नहीं जानता। कुछ तो ऐसे लोग हैं आपके शहर में जिनको यहाँ इस प्रॉपर सिटी के लोग नहीं जानते। मेला सिंह साहब का नाम सुना आपने? ये आप जिसमें ये वीडियो डालेंगे उसे किसी ने नहीं सुना होगा जी। शिव प्रसाद शर्मा जी के बाद दूसरे नंबर के संतूर वादा के हर बनाने वाले हैं। कौन जानता है? कोई नहीं जानता। डेनियल साहब को जानते हैं लोग? नहीं जानते। क्यों? क्योंकि डेनियल साहब ने फिल्मों में आकर म्यूजिक नहीं दिया। लेकिन डेनियल साहब को कौन जानता है? अमजद अली खान साहब जानते हैं, असगर अली खान साहब जानते हैं, रविशंकर जी से धारिश वो जानते थे, आशा पूर्णा देवी जी जानती थी। क्यों? आशा पूर्णा देवी जी के, रविशंकर जी के गुरु भाई थे, अमजद अली खान साहब के गुरु भाई थे। उस्ताद बाबा साहब जो मैयर के थे, अलाउद्दीन बाबा साहब, इनके शिष्य डेनियल साहब, जिन्होंने अपने गुरु की मान को रखने के लिए कभी मैयर मध्य प्रदेश का छोड़ के बाहर नहीं गए। अब वो वायलिन में मैजिक थे, पूरे पूरे स्पिरिचुअल आदमी, कभी फिल्मों में न गाया न बजाया। डू यू थिंक दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू प्ले? मैं आपको बता दूं कि ये जो आप यूट्यूब पे देखते हैं ना, कोई एक ग्रुप आता है, हेमंत कुमार महाले ग्रुप, म्यूजिक ग्रुप, उसमें जितने वायलिनिस्ट देखते हैं ना, वायलिन बजाते रहते हैं, उसमें से एक एक वायलिन बजाने वाला अपने आप में एक अरेंजर और कंपोजर है। वो चुपचाप बैठ के बजाते हुए एक अलग बात है, लोगों को मालूम नहीं है। क्या? थैंक यू वेरी मच, आपने पूछा मैंने बता दिया। लिटिल थोड़ा सा अगर आप माउथ ऑर्गन्स के, क्योंकि मुझे बहुत सारे माउथ ऑर्गन्स दिख रहे हैं सर, तो अगर आप कुछ के बारे में अगर आप जिंजर्स हैं जो रिकॉर्डिंग यूज होते हैं, और लोगों को एक गलतफहमी और भी है कि इसमें देखिए इसमें कोई बटन लगा हुआ नहीं। जी सर, बट इट इज टेम्पर्ड स्केल हारमोनी का। इसमें वो चीज़ें बच सकती हैं जो दूसरे हारमोनी का नहीं बचती है। छोटा दिखता तो लोगों लगेगा कि और ये छोटे से बजाते तो बड़ा बजाना चाहिए। तो आपको बहुत ज़्यादा टफ, बहुत अच्छा बजाना, तो आपको क्या 1 किलोमीटर लंबा हारमोनी का लाना चाहिए? डू यू थिंक सो? नाउ इमेजिन, यू कैन नॉट इमेजिन। But I will play harmony. Don't tell me to play melody. This is melody. शंकर ने भी सर आजा सनम मधुशाली में। ये ए माइनर स्केल का है, बहुत सारे कोमल सुर इसमें हैं। ऐसा बहुत कुछ होता है, and there are many special types of harmonias and you should know how to play.
there are many things, many things. Late Soniteri, he could play so many magical things on harmonica. American थे, blind थे, और वो रोलिंग स्ट्रोक्स बजाते थे जो आज इंडिया में किसी को नहीं आता। बहुत Rolling सारी Strokes. चीजें। जी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मदन कुमार जी के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे कि गिव मी टाइम, लेकिन आज लोगों के पास में सीखने के लिए टाइम नहीं है। People want to become famous soon, within a short time, and there is no shortcut of knowledge. Thank you very much. आपने पूछा, मैंने बता दिया। These are the types of harmonicas, जिसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं हारमोनिका के, और कभी आप दोबारा मिलेंगे तो आपको इसके बारे में फिर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। Sir, thank you, sir.